Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of competition. In this session, we'll be talking about Chomsky hierarchy. More specifically, we will be talking about identification of the class of the language. This is the first session on this topic. We'll take 2 sessions on this particular topic. In the previous 16 sessions, we have seen some 6 types of languages, namely regular languages. Then we saw deterministic context-free languages. Then we saw context-free languages. Then we saw context-sensitive languages. Then we saw recursive languages and then recursive enumerable languages. Now, an interesting question which is asked in GATE every year is that given a language, can you tell its class? To which type it belongs? All right. So this question, if you see from the GATE perspective, this is a very, very important question. Every year you will find at least 1 question, or sometimes you can also find 2 questions also on this particular topic. So let's see and understand. So if we talk about Chomsky hierarchy, what we have seen is these 6 types of languages. As I earlier also told, these are the 6 languages we have seen. Let's briefly revise Chomsky hierarchy once and then we will see further. All right. So what we have seen till now is regular languages. They are generated by regular grammars and they are accepted by finite automata. All right. When I talk about DCFLs, that is deterministic context-free languages, they are again generated by the context-free grammars and they are accepted by deterministic push-down automata. All right. When I talk about context-free languages, which also includes non-deterministic context-free languages, they are generated again by context-free grammars. Now, when I talk about their acceptance, that is done by NPDAs. Or we can also say PDA, which also includes non-deterministic push-down automata also, as well as it also includes deterministic push-down automata. All right, when I say PDA. All right. Then we saw context-sensitive languages. They are generated by context-sensitive grammars. All right. And now they are accepted by linear bounded automata. All right. Then we saw recursive languages, which are accepted by halting Turing machines. Then we saw recursive enumerable languages, which are recognized by non-halting Turing machines. And both recursive as well as recursive enumerable languages, they are generated by unrestricted grammars, right? So this much we have seen, all right? Now, what we will see in this session, that given a language, can you tell me what is its class, to which type of these languages this particular language belongs to? That is particularly the question. If you ask me frankly, in this session, I will be mostly talking about regular languages, that given a language, how do we identify that whether the given language is regular or not? That particularly we will see in this session. In the next session, we will see that given a language, how to identify whether it is context free or not. All right. And that will complete this entire topic. So let's see particularly how to identify that a given language is regular or not. All right. So let's see about regular languages. So first of all, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेगुलर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दी गई है, राइट? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लैंग्वेज L दी गई है, जिसका कि कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया जाएगा। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताएं कि ये जो लैंग्वेज आपको दी गई है, क्या ये रेगुलर है कि नहीं? लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। एट द रन टाइम इन द क्वेश्चन पेपर दे कैन गिव एनी लैंग्वेज। सो अब एक लैंग्वेज को देख के मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो रेगुलर है कि नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो लेट्स सी दैट। सो सबसे पहला क्राइटेरिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर कि आप उस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाते हैं तो आप बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो लैंग्वेज जो है मेरी रेगुलर हो जाती है। ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस, अगर आप उसके लिए पर्टिकुलरली रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए तब भी आप बोल पाएंगे कि ये मेरी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। हमने देखा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस व्हिच आर नथिंग बट algebraic expressions which represents regular languages. All right. Now, when I say
if I can write a regular grammar for the given language which can generate the given language, then also I can say yes, my language is regular. All right, then ये तो हो गए हमारे 3 क्राइटेरिया जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार मैं फिर से बता देता हूं. अगर मैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाता हूं अपनी लैंग्वेज के लिए, तो मैं बोल सकता हूं मेरी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर हो जाएगी. अगर मैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाता हूं जो कि उसे रिप्रेजेंट करता है, तब भी मैं बोलूंगा मेरी लैंग्वेज रेगुलर होगी. अगर कि मैं उसके लिए रेगुलर ग्रामर लिख पाता हूं जिससे कि वो लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी, तब भी मैं बोल सकता हूं मेरी लैंग्वेज रेगुलर है. तो ये तो 3 बेसिक क्राइटेरिया जो हम ऑलरेडी लगभग डिस्कस कर चुके हैं. बाकी कुछ और चीजें भी हैं, वो देखते हैं. तो सबसे पहले ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर. अगर आप फाइनाइट लैंग्वेजेस की बात करें, अगर कि लैंग्वेज का नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितने लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं अगर वो फाइनाइट हैं, तो कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर होगी, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो. देयर इज नो इशू. ऑलराइट, एग्जांपल से समझते हैं इस बात को. सेट ऑफ ऑल 2 लेंथ स्ट्रिंग्स. अगर हमें बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल 2 लेंथ स्ट्रिंग्स, तो कितने स्ट्रिंग्स होंगे? 4. राइट. अगर मान लीजिए मेरा सिग्मा मान लेते हैं 0,1 है. राइट, आई एम अज्यूमिंग मेरा सिग्मा 0,1 है, तो 4 स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे. कौन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1. यही तो 4 स्ट्रिंग्स होंगे. अगर मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स हैं तो लैंग्वेज फाइनाइट है, तो ये डेफिनेटली हम इसके लिए रेगुलर, इस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे. हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं. अगर आपको याद है तो हमने सेकेंड सेशन में इसके लिए ऑटोमेटा बनाया भी था. Alright, you can go back to lecture number 2, you can find out the automata for the same. ठीक है, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं यहां पे. ठीक है, alright. Then language 2 की बात करें, a की पावर p, p is prime and when p is less than equals to 100, तो ये भी एक फाइनाइट लैंग्वेज हो जाती है. कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है? या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. तो 100 से कम पावर्स जो हैं वो तो फाइनाइट ही होंगी, और एटलीस्ट 100 से तो हमेशा ही कम होंगी. तो ये लैंग्वेज भी फाइनाइट है, तो इसलिए मैं बोल पाऊंगा कि दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज. अब बात करें a की पावर n, b की पावर n. अगर आपको याद है a की पावर n, b की पावर n के लिए हमने पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था. हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना पाए थे. तो क्या ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाती है? नहीं. इस केस में यहां पे क्या चेंज किया है मैंने? n is greater than equals to 0 and n is less than equals to 1000. यहां पर मैंने लैंग्वेज को फाइनाइट कर दिया है. नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट हो गए हैं लैंग्वेज के अंदर. कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहां पे n is greater than equals to 0, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन. सेकंड स्ट्रिंग क्या आ जाएगा? ab. थर्ड स्ट्रिंग आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर. फोर्थ स्ट्रिंग आ जाएगा a क्यूब b क्यूब. फिफ्थ स्ट्रिंग आ जाएगा a4 b4 and so on till a100 b100. 1000 1000. राइट, दिस इज द लास्ट स्ट्रिंग. तो कितने स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज में? 1001. तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर मेरे फाइनाइट हैं तो मैं हमेशा इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूं. कैसे? आप सारे स्ट्रिंग्स के लिए अलग अलग ऑटोमेटा बना के उसको मर्ज भी कर सकते हैं यूजिंग एप्सिलॉन मूव्स. तो बेसिकली मैं एक एप्सिलॉन एनएफए भी बना सकता हूं. और आपको यह भी पता है कि एवरी एप्सिलॉन एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू एन एनएफए एंड एन एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू इनटू ए डीएफए. ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, हर हम एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एप्सिलॉन एनएफए को हम एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर एनएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनकी पावर बिल्कुल सेम है. ऐसा कोई भी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए हम एप्सिलॉन एनएफए बना पाए या एनएफए ना बना पाए, या ऐसा भी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसके लिए हम एनएफए बना पाए और डीएफए ना बना पाए. सबकी पावर सेम है. पावर ऑफ ए लैंग्वेज क्या था? जितने लैंग्वेजेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी कैन एक्सेप्ट यूजिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑटोमेटा. ठीक है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑटोमेटा को यूज करके हम कितने लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने सारे लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका काउंट को हम उस ऑटोमेटा की पावर कहेंगे. ऑलराइट, कितने लैंग्वेजेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजिंग एनी पर्टिकुलर ऑटोमेटा, उसको हम उस ऑटोमेटा की पावर कहेंगे. ऑलराइट, तो वापस से चलते हैं, आगे चलते हैं. सो ये 4 क्राइटेरिया क्लियर हो गए. अगर हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाए, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाए, रेगुलर ग्रामर लिख पाए, और फाइनली अगर लैंग्वेज ही फाइनाइट है तो वो मेरी हमेशा से रेगुलर हो जाएगी. एक और क्राइटेरिया क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेजेस. अब अभी तक हम बात कर रहे थे फाइनाइट लैंग्वेजेस की. अब अगर मान लीजिए मेरी लैंग्वेज हो जाती है इनफाइनाइट, अगर मान लीजिए मेरी लैंग्वेज हो जाती है इनफाइनाइट, इस केस में
इस पर्टिकुलर केस में अगर कि इफ आई रिक्वायर नो मेमोरी, नो कंपैरिजन, नो काउंटिंग, और इफ आई रिक्वायर फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट कंपैरिजन और फाइनाइट काउंटिंग, अगर ऐसा पर्टिकुलर केस है तब मैं बोलूंगा मेरी लैंग्वेज रेगुलर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक फाइनाइट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, हम इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वी रिक्वायर इफ द लैंग्वेज रिक्वायर्स नो और फाइनाइट मेमोरी, कंपैरिजन एंड काउंटिंग, तब मैं बोलूंगा मेरी लैंग्वेज रेगुलर होगी। अगर कि मुझे इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है या इनफाइनाइट कंपैरिजन की जरूरत है, तब मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर पाऊंगा एक्सेप्टेंस। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास तो मेरी मेमोरी फाइनाइट है बिकॉज द स्टेट्स आर फाइनाइट एज वेल एज द ट्रांजिशंस आर फाइनाइट। इस वजह से मैं इसके लिए इस केस में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर नो और फाइनाइट मेमोरी, कंपैरिजन या काउंटिंग है, तब मैं बोल पाऊंगा रेगुलर है। अगर इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट कंपैरिजन या इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत हुई तब मैं ये चीज नहीं बोल पाऊंगा कि मेरी लैंग्वेज रेगुलर है। ऑलराइट, तो जैसे कि मान लीजिए अगर बोला है a की पावर n, b की पावर m, यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, n और m बिल्कुल अलग अलग है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई कंपैरिजन है। इस केस में मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरी लैंग्वेज क्या हो गई? रेगुलर हो गई। ठीक है, तो सिंस देयर इज नो कंपैरिजन और काउंटिंग और नो मेमोरी इज रिक्वायर्ड, आई कैन क्लियरली से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि पहले a आएंगे और फिर b आएंगे। ओनली द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इजीली स्टोर कर पाएगा, तो इसलिए मैं इस लैंग्वेज को रेगुलर बोल दूंगा। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैं रेगुलर बोल सकता हूं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो डन। राइट, सो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया। सिक्स्थ और लास्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं मेरी लैंग्वेज रेगुलर है, वो क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। अगेन इनफाइनाइट लैंग्वेजेस की बात हो रही है। फाइनाइट लैंग्वेजेस तो हमेशा रेगुलर होंगी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हम क्या करेंगे? हर स्ट्रिंग के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना देंगे और सबको क्लब कर देंगे यूजिंग एप्सिलॉन मूव्स एंड वी विल मेक अ एप्सिलॉन एनएफए फॉर दैट। ऑलराइट, सो नाउ इनफाइनाइट लैंग्वेजेस with the pattern of the strings in an AP, they are regular। अगर कि मेरे पास में जो पैटर्न है वो स्ट्रिंग्स का, वो अगर AP के अंदर आ जाता है with the pattern of the strings in an AP, then we can say that the language is regular। When I am saying pattern is in an AP, मतलब कि पावर की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग्स के साइज की बात कर रहा हूं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे एपी चाहिए, राइट? पैटर्न में एपी आना चाहिए, पावर ऑफ द स्ट्रिंग्स एपी के अंदर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एपी के अंदर होना चाहिए, तब मैं बोल पाऊंगा कि मेरी लैंग्वेज रेगुलर है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझते हैं इस बात को। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज देखें ए की पावर 2n, अब इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग्स जनरेट करने की कोशिश करूं तो जैसे सबसे पहले एप्सिलॉन हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए टू द पावर 4 हो गया, ए टू द पावर 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर मैं यहां पे पावर्स को देखने की कोशिश करूं तो पावर्स क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज इट एन एपी? यस, इट इज एन एपी, सो देयरफॉर इट इज रेगुलर। इसलिए क्या हो जाता है? रेगुलर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें ऐसा एपी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइनाइट ऑटोमेटा में इनफाइनाइट बनाने के लिए, लैंग्वेज को इनफाइनाइट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लूप लगा सकते हैं। और लूप जो है वो एक तरीके से कॉमन डिफरेंस क्रिएट करेगा, राइट? जैसे आपकी लेंथ 2 थी, 2 के बाद 4 हो गई, 4 लाने के लिए अगर आपने लूप लगा रखा है 2 लेंथ का, तो नेक्स्ट टाइम आपकी लेंथ 4 आ जाएगी। आपको लेंथ 6 करनी है तो आपका अगेन दोबारा से आप वो लूप रन करेंगे तो लेंथ 6 आ जाएगी। लूप के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉमन डिफरेंस है मेरा कॉमन डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लूप। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फिक्स होना चाहिए। अगर वो चेंज होगा बार बार तो मैं बेसिकली लूप नहीं बना पाऊंगा। ऑलराइट, तो अगर मेरा कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया तो वो क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। Alright, so this is the criteria, this is the reasoning behind saying that the pattern has to be in an AP। जब मैं बोल रहा हूं पैटर्न एपी में है, इसका मतलब जो पावर्स हैं वो एपी में है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज इन एन एपी। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जो पावर हो गई वो हमारी एपी में होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स हो गई वो एपी में होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वही मेरा लूप को रिप्रेजेंट करता है।
जो लूप होता है वो मेरे कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं बार बार जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मेरा जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए ये एक एपी है। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 3n+1, तो यहां पे क्या हो गया, अगर मैं पावर्स को देखूं तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 10, 7 आएगा, 3 3 9 + 1 10, राइट। 10 के बाद 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 3। तो 3 लेंथ का मैं यहां पे लूप चला दूंगा। ऑलराइट, बहुत क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सो दिस इज ऑल्सो रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, ओके, सो ये सारे क्राइटेरियाज थे मेरे। आगे बढ़ने से पहले मैं अभी एक बार फिर से रिवीजन करा दें एक बार। अभी तक हमने देखा किस किस तरीके से हम लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाऊं तो मैं बोल दूंगा कि वो रेगुलर है। अगर मैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाऊं, अगर मैं उसके लिए रेगुलर ग्रामर लिख पाऊं, तब मैं बोल सकता हूं कि लैंग्वेज रेगुलर है। अगर कि लैंग्वेज का लेंथ फाइनाइट है, राइट, अगर लैंग्वेज का लेंथ फाइनाइट है मतलब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तब मैं बोल पाऊंगा रेगुलर है। या फिर अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है, उसके अंदर नो मेमोरी, नो कंपैरिजन और नो काउंटिंग है, या फिर फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट कंपैरिजन या फाइनाइट काउंटिंग है, तब मैं बोल सकता हूं कि मेरा लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। और जो पैटर्न है इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर वो भी एपी में होना चाहिए, मतलब कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इन एन एपी और द पावर्स शुड बी इन एन एपी। ऑलराइट, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब कब लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। इनफाइनाइट लैंग्वेजेस विद द पैटर्न नॉट इन एन एपी, दे आर नॉन रेगुलर। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, a⁴n², पहला क्या होगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर फिक्स नहीं है, ये एपी नहीं है, तो इसके लिए मैं यहां पर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकता, इसलिए लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट लैंग्वेजेस रिक्वायरिंग इनफाइनाइट मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट है, आपके कंपैरिजंस की रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट है, आपकी काउंटिंग की रिक्वायरमेंट अगर इनफाइनाइट है, तब मैं इस केस में क्या बोलूंगा कि मेरी लैंग्वेज क्या हो गई, नॉन रेगुलर हो गई। अब एक एग्जांपल देखते हैं। a⁴n, b⁴n, n greater than equals to 0। यहां पर मेरा n क्या हो सकता है, n 0 होगा तो मेरे पास एप्सिलॉन मिलेगा, n 1 होगा तो मेरे को ab मिलेगा, n 2 होगा तो मेरे को मिलेगा a² b²। अप टू कहां तक जाना है? देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। तो अगेन आई डू नॉट नो हाउ मेनी एज आर कमिंग। मेरे को इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए जिससे कि मुझे पता लगे कि इतने एज आए, उसके बाद मैं 20 के नंबर से उसको मैच करूं। तो मेरे को इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट काउंटिंग, इनफाइनाइट कंपैरिजन की जरूरत है, इसलिए ये लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर रहेगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉन रेगुलर एंड दिस इज ऑल्सो नॉन रेगुलर। ठीक है, ऑलराइट। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रेगुलर। ये नेट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको 6 लैंग्वेजेस दी गई हैं। यू आर गिवन 6 लैंग्वेजेस एंड यू हैव टू टेल मी क्लियरली हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रेगुलर। तो आंसर विल वेरी फ्रॉम 0 to 6, right? All right, so let's see. The first language is saying L1 is equals to a⁴n, where n is greater than equals to 1. ठीक है, तो क्या ये रेगुलर है? बिल्कुल रेगुलर है। मैं इसके लिए तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं, a*. So if I can write a regular expression, so therefore this is regular, a is regular. Next language को देखते हैं, a⁴n, where n is greater than equals to 1 and n is less than equals to 1000. ये तो लैंग्वेज ही मेरी फाइनाइट हो गई। अगर मेरी लैंग्वेज फाइनाइट है तो डेफिनेटली ये तो रेगुलर होगी ही होगी। ऑलराइट, देन देखते हैं a⁴n, b⁴n, where n is greater than equals to 1. अगेन इनफाइनाइट कंपैरिजंस, इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है, तो इसलिए ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, सो a इज रेगुलर, b इज रेगुलर, c इज नॉट रेगुलर। अभी देखा था हमने ये एग्जांपल। ऑलराइट, देन आता है a⁴n, b⁴n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000। अब इस केस में क्या हो गया? लैंग्वेज जो है मेरी फिर से फाइनाइट बन गई। फाइनाइट लैंग्वेज चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, वो रेगुलर बनी जाएगी। कैसे बनेगी? हम सारे के सारे फाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए जो भी फाइनाइट स्ट्रिंग्स उसके अंदर हैं, हम सब के लिए अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे और उन सबको एप्सिलॉन मूव्स के थ्रू क्लब कर देंगे और मुझे क्या मिलेगा? एप्सिलॉन NFA।
और एप्सिलॉन एनएफए बन सकता है तो मैं उसे एनएफए में कन्वर्ट कर सकता हूं, और एनएफए बन सकता है तो मैं उसे डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इजीली बन सकता है, और इन सभी की पावर एप्सिलॉन एनएफए, एनएफए और डीएफए की पावर एग्जैक्टली सेम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m, अगेन क्या मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे? a स्टार b स्टार, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रेगुलर। ये भी मेरी रेगुलर, ये भी मेरी रेगुलर। ऑलराइट, देन आता है a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m, where n, m is greater than equals to 1 and n, m is less than equals to 1000। अगेन ये मेरी लैंग्वेज जो है फाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज होगी तो रेगुलर तो होगी ही होगी। तो डेफिनेटली यहां पर L6 भी रेगुलर है। ऑलराइट, ऑलराइट। अगर मैं पूछूं इसके अंदर कितने स्ट्रिंग्स होंगे इस लैंग्वेज में, क्या हम बता सकते हैं कितने स्ट्रिंग्स होंगे? सो बेसिकली यहां पर मैं क्या वेरी कर सकता हूं? n को वेरी कर सकता हूं और m को भी वेरी कर सकता हूं। माई n कैन टेक 1000 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 1000। Similarly, m can also take 1000 values starting from 1 to 1000. So therefore, there are 10 raised to power 6 strings in this language. Since it is finite, this number is finite, therefore this language is regular. So अगर आपसे पूछा गया था how many of the following languages are regular, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. 5 of these languages are regular. So the answer to this NAT based question will be 5. All right. So the answer is 5. Only the language C is not regular. A, B, D, E, F all are regular. All right, सिंपल है, ठीक है। सो अगर अगेन अभी हम और ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो कैसे हम एक लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो रेगुलर है? सबसे पहले अगर मैं उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाता हूं तो वो रेगुलर है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पाता हूं तब वो रेगुलर है, अगर मैं रेगुलर ग्रामर लिख पाता हूं तब भी वो रेगुलर है, लैंग्वेज अगर फाइनाइट है तब भी वो रेगुलर है, और अगर वो लैंग्वेज इनफाइनाइट है लेकिन उसमें कोई मेमोरी, कोई काउंटिंग या कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, या फिर फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट काउंटिंग या फाइनाइट कंपैरिजन चाहिए, तब वो रेगुलर है। और अगर वो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, अगर उसका पैटर्न एपी में है, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स अगर एपी में है, यानी कि पावर्स एपी में है, तब मैं बोल पाऊंगा वो लैंग्वेज रेगुलर है। थ्योरी वाइज इतना ही है, बाकी इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, विल सी दैट। ऑलराइट, let's see this question. How many of the following languages are regular? Again it's an NAT based question. आपको बताना है कि कितने लैंग्वेजेस यहां पर मेरे रेगुलर हैं। तो देखते हैं, L1 है मेरा WW। मेरे को क्या करना है, यहां पर फर्स्ट W को दूसरे W से कंपेयर करना है। W मेरा इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग है, इनफाइनाइट लेंथ हो सकता है बिकॉज W बिलोंग्स टू A, B स्टार। तो इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट कंपैरिजन, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है मुझे यहां पर, तो ये तो रेगुलर नहीं है। अगर मैं W को रेस्ट्रिक्ट कर दूं A, B स्टार की बजाय A, B प्लस, स्टिल इट इज इनफाइनाइट। फिर से इनफाइनाइट कंपैरिजन, इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है, तो ये फिर से रेगुलर नहीं है। ऑलराइट, और अगर मैं बात करूं L3 की, यहां पर भी W मेरा बिलोंग्स टू A, B स्टार है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ W हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 3। मॉड ऑफ W को अभी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 3 लेंथ का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब क्या होगी, मेरी ये लैंग्वेज फाइनाइट हो गई। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो हमेशा रेगुलर तो होगी ही होगी। तो माई लैंग्वेज C इज रेगुलर, A एंड B आर नॉन रेगुलर। आगे देखेंगे, लेकिन क्या हम इसमें बता सकते हैं कितने स्ट्रिंग्स बिलोंग करेंगे, कितने स्ट्रिंग्स होंगे इस लैंग्वेज में? अगर फाइनाइट है तो नंबर होगा ना कुछ। ऑलराइट, तो क्या नंबर है वो, वही नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मॉड ऑफ W अगर 0 है तो एक ही स्ट्रिंग होगी एप्सिलॉन। मॉड ऑफ W अगर 1 है तो स्ट्रिंग क्या होंगी, A, B। मॉड ऑफ W अगर मेरा 2 हो जाता है तो कितने स्ट्रिंग्स होंगे, 4 होंगे, AA, AB, BA एंड BB। अगर मेरा मॉड ऑफ W 3 हो जाता है तो मेरे को कितने स्ट्रिंग्स मिलेंगे, 8 स्ट्रिंग्स मिलेंगे। आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। कैसे 8 मिलेंगे, क्योंकि हर प्लेस पे मेरे पास दो ऑप्शन है, 2 into 2 into 2 दैट इज 8। यहां पे AB आ सकता है, यहां पे भी AB, यहां पर भी AB। आई एम अज्यूमिंग सिग्मा इज AB, यस इट इज ऑलरेडी गिवन आल्सो। ऑलराइट, तो कितने स्ट्रिंग्स हुए, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। 15 स्ट्रिंग्स आर देयर इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, और उसी का कॉपी फिर मैं इस वाले W पे भी रख दूंगा, दैट इज एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन। सिमिलरली A डॉट A, B डॉट B, AA डॉट AA एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
WWR की अगर मैं बात करूं, R इज स्टैंडिंग फॉर रिवर्सल, ठीक है। अगर WWR की बात करें, अगेन इस W को मुझे इस WR से कंपेयर करना है, अगेन इनफाइनाइट मेमोरी और इनफाइनाइट कंपैरिजन की जरूरत है, अगेन यहां पर ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। अगर मैं यहां पे W को रिस्ट्रिक्ट कर दूं A, B पॉजिटिव, स्टिल माय W इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट कंपैरिजन, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है, तो अगेन ये लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर हो गई। आगे बढ़ते हैं, W बिलोंग्स टू A, B स्टार, अगेन फिर से A, B स्टार है, लेकिन फिर से मैंने कंस्ट्रेंट डाल दिया, मॉड ऑफ W हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 3, वही 15 स्ट्रिंग्स, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15 स्ट्रिंग्स यहां पर भी होंगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर इस वाले की बात करें WW, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे लिखते हैं AB, और यहां पर जब हम इसी स्ट्रिंग को यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे तो AB का रिवर्स यहां डालेंगे, दैट इज BA। ऑलराइट, what is WWR? We have already seen this represents even length palindromes, right? Alright, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो फाइनली हमें दो ही लैंग्वेजेस फाइनाइट मिले जो कि रेगुलर है, दैट इज L3 and L6. So the answer to this NAT based question will be 2. So L3 and L6 are regular, so the answer is 2. ठीक है भाई, सिंपल है। ऑलराइट, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर रेगुलर, इनमें से कौन से लैंग्वेजेस हमको रेगुलर है। अगेन नेट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन आपको क्या करना है, हर लैंग्वेज को देखना है, हमारे क्राइटेरिया जो हमने 6 क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, उन पे चेक करना है। अगर उनमें से कोई भी क्राइटेरिया फिट हो जाता है तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई मेरी लैंग्वेज जो गिवन है दैट इज रेगुलर। अगर उनमें से कोई भी क्राइटेरिया फिट नहीं होता है तो मेरी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, नॉन रेगुलर बन जाएगी। ऑलराइट, सिंपल है, लेट्स अप्लाई इट हियर। ठीक है, L1 क्या हो गया, A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, अगर ऐसा दिया गया है तो क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। क्या होगा मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन, A स्टार, B स्टार, C स्टार, ये मेरा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो मैं बोल पाऊंगा कि ये रेगुलर है। किसी को ऐसे तो नहीं लग रहा कि भैया यहां पे हमें कंपैरिजन करना है ABC का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I, J, K बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मेमोरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपका जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। दैट इज A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, B के बाद A नहीं आ सकता, C के बाद B और A नहीं आ सकते। सिर्फ एक सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है, विच इज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेंटेन्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसलिए ये लैंग्वेज मेरी क्या बन जाती है, रेगुलर बन जाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पे मुझे इनफाइनाइट कंपैरिजन करने की जरूरत है। पहली स्ट्रिंग होगी ABC, दूसरी स्ट्रिंग A2 B2 C2, तीसरी स्ट्रिंग A3 B3 C3, चौथी स्ट्रिंग A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी। इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट कंपैरिजन, इनफाइनाइट काउंटिंग की जरूरत है, तो ये रेगुलर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। A की पावर I, B की पावर 2J, क्या ये रेगुलर है? बिल्कुल है। क्या मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, A स्टार, B स्टार, ये हो गया मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन। ये लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है ये, कि पहले हमें एनी नंबर ऑफ एज चाहिए और उसके बाद मेरे को इवन नंबर ऑफ बीज चाहिए, बस। और इनके बीच में एक सीक्वेंसिंग है। तो ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको मैं बहुत इजीली फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट करा सकता हूं। तो इसलिए मेरी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, रेगुलर बन जाएगी। लैंग्वेज C इज ऑल्सो रेगुलर, दिस इज ऑल्सो रेगुलर, दिस इज ऑल्सो रेगुलर, दिस इज नॉन रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। L4 क्या है, A की पावर I, B की पावर 2I, मतलब अब क्या है कि यहां पर ये I और ये I दोनों सेम हैं। अगर कि मेरा एक A आ रहा है तो मुझे 2 B चाहिए। अगर दो A आ रहे हैं तो B 4 चाहिए। अगर A 3 है तो B 6 चाहिए। अगेन यहां पर फिर से दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट लैंग्वेज, तो मेरे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं, जो काउंटिंग है, जो मेमोरी है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस वजह से ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। उस वजह से ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट लैंग्वेज में जाते हैं। A टू द पावर I, B टू द पावर J स्क्वायर। अगेन इसको देखेंगे ध्यान से, A की पावर I है, B की पावर J स्क्वायर है। जस्ट अ सेकेंड,
ए की पावर आई है, बी की पावर जे स्क्वायर है। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो क्या ये रेगुलर है? अभी तक मेरे को दो लैंग्वेजेस रेगुलर मिले हैं, राइट? अभी मैं फिफ्थ लैंग्वेज देख रहा हूं। ए की पावर आई, बी की पावर जे स्क्वायर, यहां पे क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है? देखो ध्यान से अगर हम इसको देखें तो यहां पर आई और जे में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, इस वजह से रेगुलर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बी का पैटर्न है वो एपी वाला पैटर्न नहीं बनेगा। पहला आएगा बी की पावर 1, फिर आएगा बी की पावर 4, देन बी की पावर 9। तो ये जो पैटर्न है वो मेरा एपी में नहीं आ रहा है, इसलिए ये फिर से रेगुलर नहीं होगा। ए की पावर आई, बी की पावर 2j प्लस 1, अगर ऐसा है, ए की पावर आई है, बी की पावर 2j प्लस 1 है, यहां पे जो मेरा पैटर्न है वो एपी में आ गया, मतलब ओड नंबर ऑफ बीज चाहिए। जैसे कि पहले मुझे बी की पावर 3 भी मिल सकता है, 3 के बाद मुझे मिलेगा 7, 3 के बाद मुझे मिलेगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पैटर्न मेरा एपी में आ गया। ए और बी के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। एक सीक्वेंसिंग का इंफॉर्मेशन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए, विच इज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो रेगुलर। ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर, ये भी रेगुलर। ऑलराइट, तो इसलिए यहां पर मेरे केस में ए, सी और एफ तीन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, ए, सी एंड एफ। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। ऑलराइट, सिंपल है। किसी को ऐसे भी लग सकता है कि भैया अगर हमारे बीज ओड है या फिर बीज इवन है तो ये भी तो इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन हो गया, तो क्यों ये रेगुलर क्यों होता है? तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक जो हमने किया है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमने किया है वो तो हमने देखा है, वो तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा से बना सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लूप्स। इफ यू रिमेंबर, हमने बहुत इजीली देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इवन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ओड, नंबर ऑफ एज आर इवन, नंबर ऑफ एज आर ओड, राइट, नंबर ऑफ बीज आर इवन, नंबर ऑफ बीज आर ओड। बहुत इजीली हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे हैं। इन सब के लिए तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलर अर्थमेटिक हो जाता है। और अगर कि जैसे मॉड्यूलर अर्थमेटिक है तो पॉसिबल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इवन है तो दो ही स्टेट्स हैं, या तो इवन होगा या ओड होगा। अगर मैं कहूं कि mod 3 इज इक्वल टू 1, तब भी मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट हैं। कैसे? 0, 1 एंड 2, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक होने की वजह से, ऑल्दो द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट, बट अरिथमेटिक मॉड्यूलर होने की वजह से, अरिथमेटिक जो है मेरा मॉड्यूलर अर्थमेटिक होने की वजह से फाइनली जो मेरी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं वो फाइनाइट आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बी जो है वो 0 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है। इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल, वैल्यूज आर इनफाइनाइट, बट पॉसिबिलिटीज आर फाइनाइट। दैट इज आइदर ओड और इवन। लेट मी रिपीट दिस पॉइंट, the possibilities are finite but the values are infinite. Since the possibilities are finite, therefore this is regular. All right, next देखते हैं, how many of the following languages are regular? All right, again it is a net based question। फिर से हमारे पास net based question है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस मेरी रेगुलर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं एंड विल सी दिस स्टेप बाय स्टेप। L1 की बात करें, L1 इज a raised to power 2 and this is even। नंबर ऑफ एज इवन होंगे। पहला स्ट्रिंग क्या आएगा? एप्सिलॉन, अगला क्या आएगा? a स्क्वायर, अगला क्या आएगा? a की पावर 4, a की पावर 6, a की पावर 8, a की पावर 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मॉड्यूलर अर्थमेटिक से देखेंगे तो ये रेगुलर हो जाएगा। ऑल द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर इनफाइनाइट बट द पॉसिबिलिटीज आर फाइनाइट, राइट? सो देयरफॉर दिस इज रेगुलर। 2n + 1 अगर हो जाएगा तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ एज आर ओड, मतलब कि a3 n is greater than equal to 0, right? a5, a7, a9, a11 and so on and so forth। तो ये भी रेगुलर हो गया। ऑलराइट, ये भी मेरा रेगुलर हो गया। आगे बढ़े, a की पावर n स्क्वायर, अगेन पैटर्न अब मेरा जो है एपी में नहीं आएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जो मेरा पैटर्न है वो मेरा एपी में नहीं आ पाएगा। लिखने की कोशिश करूं अगर मैं, तो लिख भी सकता हूं a की पावर 0 विच इज नथिंग बट एप्सिलॉन, देन a की पावर 4, देन a की पावर 9, a की पावर 16, a की पावर 25। ये एक सिंगल लूप से मैं जनरेट ही नहीं कर सकता। अगर मुझे लूप लाना है तो कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड होगा, जिसकी वजह से वो एपी बनेगा। ऑलराइट, सिंपल है।
आगे बढ़े, a की पावर n फैक्टोरियल, क्या आंसर्स होंगे? अगेन AP तो नहीं बनेगा, AP नहीं बनेगा तो रेगुलर भी नहीं बनेगा। क्या मैं स्ट्रिंग्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 factorial is also 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 6 4 is 24, and 5 factorial is nothing but 120, and so on and so forth. अगेन पैटर्न एपी में नहीं है। ए की पावर पी वेर पी इज प्राइम, ये भी यहां पे भी पैटर्न एपी में नहीं आएगा। पहला नंबर क्या आएगा? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो पहला नंबर आएगा ए की पावर 2, दूसरा नंबर ए की पावर 3, तीसरा नंबर ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ए की पावर 11 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और जबकि एपी नहीं बन रहा है मेरा, तो ये जो है यहां पे भी नहीं होगा। अगर आपको एक एग्जांपल याद होगा, उससे आप इसे कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले हमने जब एग्जांपल किया तब मैंने बोला था p इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तब ये लैंग्वेज फाइनाइट बन जाती है। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट यहां से हटा देता हूं तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट हो सकती हैं, इसलिए लैंग्वेज इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसकी वजह से ये नॉन रेगुलर बनेगी। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज को फाइनाइट कर दूं, p इज लेस देन इक्वल्स टू 100 कर देता हूं, उस केस में ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी? रेगुलर बन जाएगी। अभी फिलहाल नॉन रेगुलर है। ए की पावर 2 रेज़ टू पावर n, अगेन कोई पैटर्न एपी में नहीं बन पा रहा है मेरा। मतलब कि अगर जैसे यहां पर हम देखें, ए की पावर 1, ए की पावर 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, ए की पावर 2 रेज़ टू पावर 1 इज 2, ए की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इज 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4, ए रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हिच इज अगेन then 2 raised to power 4 16 will also come. Again AP नहीं है, तो मेरे पास में ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं होगी। So therefore the answer to this NAT based question will be 2. Which are the languages which are regular? That is L1 and L2, that is option number A and option number B. तो अब इस केस में भी मेरे पास 2 ही आंसर आएगा। So the answer to this NAT based question will also be 2. These are the 2 examples. All right. Okay, so that's all about this session, guys. What we saw is how to prove that a given language is regular. In fact, I should say how to find out that whether a given language is regular. Proofs we have not seen formally. As far as the GATE syllabus is concerned, you don't need to prove them formally. We saw that how to say that the given language is regular. Identifying whether the given language is regular. In the next session, we will see that whether the given language is context free or not. All right. So if we talk about the previous sessions, we have already seen finite automata, we have already seen regular expressions, we have seen grammars, and then we have seen pushdown automata, then we saw Turing machines, and then we are currently on Chomsky hierarchy. We have seen identifying whether the given language is regular or not in this particular session. In the next session, we will see that whether the given language is context free or not, and that will complete our identification of the class of the language. All right. So thank you so much, guys. I'll see you guys in the next session.